ترقیاتی منصوبوں میں تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی، ڈیسلٹنگ شیڈول پر سختی سے عمل درآمد اور عوامی شکایات کا فوری ازالہ کیا جائے۔ ایم ڈی واسا کی زیر صدارت اجلاس ہوا، تمام ڈائریکٹرز کو بجلی کی بچت کے لیے خصوصی اقدامات کرنے کی ہدایت جاری کر دی گئی ہے۔ اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، ترقیاتی منصوبوں میں تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی، ڈیسلٹنگ شیڈول پر سختی سے عمل درآمد اور عوامی شکایات کا فوری ازالہ کیا جائے۔ ایم ڈی واسا کی زیر صدارت اجلاس ہوا، تمام ڈائریکٹرز کو بجلی کی بچت کے لیے خصوصی اقدام کرنے کی بھی ہدایت کی گئی ہے۔ تو آپ کو بتائیں، اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، ترقیاتی منصوبوں میں تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی، ڈیسلٹنگ شیڈول پر سختی سے عمل درآمد اور عوامی شکایات کا فوری ازالہ بھی کیا جائے گا۔ ڈرائیور ڈاریا گاؤں میں جھگڑے کے دوران فائرنگ، 2 افراد زخمی، زخمیوں میں 20 سالہ عامر اور 10 سالہ نعمان شامل ہیں۔ ملزم مراتب علی سے پستول اور گولیاں برآمد ہوئی ہیں، مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں مدثر حسین سے۔ جی مدثر، آگاہ کیجیے۔ جی بالکل، رائے سٹی رائے گاؤں میں یہ واقعہ پیش آیا ہے اور لڑائی جھگڑے کے دوران فائرنگ ہوئی ہے۔ فائرنگ کی زد میں آ کر 2 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ زخمی ہونے والوں میں 20 سالہ عامر اور 10 سالہ نعمان شامل ہے۔ دونوں زخمیوں کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، جہاں ان کا علاج جو ہے وہ جاری ہے۔ اس وجہ سے اے ایس پی سدرا خان کے پاس ایس پی کا بھی اضافی چارج ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ واقعے میں ملوث ملزم کو جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ملزم مراتب علی سے واردات میں استعمال ہونے والا پستول اور گولیاں بھی برآمد کر لی گئی ہیں۔ اس وجہ سے پولیس کا کہنا ہے کہ متاثرہ خاندان کی طرف درخواست پر جو ہے وہ اقدامی قتل کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور ملزمان سے جو ہے وہ تفتیش کی جا رہی ہے، جبکہ دیگر جو فرار ملزمان ہیں ان کو بھی پولیس سے کہنا ہے کہ جلد گرفتار کر کے حوالات میں بند کیا جائے گا۔ جلد گرفتار کر کے حوالات میں بند کیا جائے گا۔ مدثر حسین، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ فیکٹریریا پولیس کی کارروائی، اشتہاری ملزم عمران گرفتار، پولیس کو ملزم عمران 4 سال سے مطلوب تھا، ملزم سے 1.5 کلو سے زائد چرس، پسٹل اور گولیاں برآمد، ملزم عمران کے خلاف مقدمات درج ہیں۔ پولیس کی کارروائی کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے، ملزم عمران کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جبکہ ملزم 4 سال سے پولیس کو مطلوب تھا۔ یہ مناظر بھی آپ ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ پولیس نے گرفتاری کے بعد ملزم کی تصاویر جاری کر دی ہیں، جبکہ ملزم اس سے پہلے بھی مقدمات میں پولیس کو مطلوب تھا۔ تو آپ کو بتائیں، فیکٹری ایریا پولیس کی کارروائی سامنے آئی ہے، اشتہاری ملزم عمران کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ عدالتی حکم کے باوجود چودھری پرویز الہی کی گرفتاری کا معاملہ، ڈی آئی جی آپریشن سمیت دیگر پولیس افسران کے خلاف توہین عدالت کی درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس امجد رفیق 4 سپتمبر کو پرویز الہی کی اہلیہ کی درخواست پر سماعت کریں گے۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی گرفتاری کے خلاف توہین عدالت کی درخواست سماعت کے لیے مقرر۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس امجد رفیق 4 سپتمبر کو سماعت کریں گے۔ درخواست پرویز الہی کی اہلیہ کیسرا الہی کی جانب سے دائر کی گئی۔ درخواست میں ڈی آئی جی آپریشن سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ عدالت عالیہ نے پولیس کو حکم دیا تھا کہ پرویز الہی کو بحفاظت گھر چھوڑ کر آئیں، مگر ایسا نہیں ہو سکا۔ درخواست میں یہ بھی نقطہ اٹھایا گیا کہ ہائی کورٹ نے پرویز الہی کو کسی بھی مقدمے میں گرفتار کرنے اور نظر بند کرنے سے روکا تھا، لیکن عدالتی حکم پر عمل درآمد نہیں کیا گیا، لہٰذا عدالت ڈی آئی جی آپریشنز اور ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کرے۔ رجسٹرار آفس نے لاہور ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی۔ جسٹس امجد رفیق 4 سپتمبر کو کیسرا الہی کی درخواست پر سماعت کریں گے۔ کیمرامین محمد ایوب کے ساتھ محمد اشفاق، لاہور نیوز۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے 9 مئی کے کیس میں شاہ محمود قریشی اور فواد چودھری کی عبوری ضمانتوں کو خارج کر دیا۔ اسد عمر نے 5 مقدمات میں مطلوب نہ ہونے پر ضمانت واپس لے لی۔ ڈاکٹر یاسمین راشد، میاں محمود الرشید اور اعجاز چودھری کو واپس جیل بھیج دیا گیا۔ نعمان نور کی رپورٹ دیکھیے۔ انسداد دہشت گردی عدالت میں 9 مئی کے مقدمات جج اکبر گل نے شاہ محمود قریشی، اسد عمر اور دیگر کی عبوری ضمانت کی درخواستوں پر سماعت کی۔ دوران سماعت فواد چودھری اور شاہ محمود قریشی پیش نہ ہوئے۔ عدالت نے جناح ہاؤس حملے کے مقدمے سمیت شاہ محمود قریشی کی 12 مقدمات میں ضمانتیں خارج کر دیں۔ ادھر اسد عمر سے متعلق پولیس نے رپورٹ عدالت میں پیش کی اور بتایا کہ اسد عمر جناح ہاؤس اور عسکری ٹاور سمیت 7 مقدمات میں مطلوب ہیں۔ تھانہ گلبرگ میں درج کنٹینر جلانے سمیت 5 مقدمات
मुकदमात में मतलूब नहीं, जिस पर असद उमर ने जमानत वापस ले ली। चेयरमैन PTI की बहनें उस्मा खानम और हलीमा खानम पेश हुई। अदालत ने दोनों मुलजिमा से मुतालिक पुलिस से इस्तफसार किया कि दोनों ने तफ्तीश को ज्वाइन किया, जिस पर पुलिस ने बताया कि दोनों ने तफ्तीश ज्वाइन नहीं की। अदालत ने दोनों मुलजिमा को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दे दिया और पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद और इजाज चौधरी को वापस जेल भेज दिया। 5 मुलजिमान फयाज, इरफान, अहमद अली, मुजम्मिल और मोहम्मद यूनुस को शनाख्त परेड के लिए जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया गया। सानहा 9 मई के मुकदमे में मुलविस दीगर 12 मुलजिमान को भी जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। अदालत ने कारकुन आयशा भुट्टा की अबूरी जमानत अदम पैरवी के बायस खारिज कर दी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि दरबार शेख अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज़ 5 सितंबर से होगा। 10 लाख से ज़ायद अक़ीदतमंद शिरकत करेंगे। वज़ा करदा सिक्योरिटी और ट्रैफिक प्लान पर मिनुअन अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास उर्स के इंतज़ामात का जायज़ा लिया गया। तो आपको बताएं, दरबार शेख अली हजवेरी के उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज़ 5 सितंबर से होगा। 10 लाख से ज़ायद अक़ीदतमंद शिरकत करेंगे। वज़ा करदा सिक्योरिटी और ट्रैफिक प्लान पर मिनुअन अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास उर्स के इंतज़ामात का जायज़ा लिया गया है। दरबार शेख अली हजवेरी के उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज़ 5 सितंबर से होगा। 10 लाख से ज़ायद अक़ीदतमंद शिरकत करेंगे। वज़ा करदा सिक्योरिटी और ट्रैफिक प्लान पर मिनुअन अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी का एहतजाज। सिराजुल हक की क़ियादत में माल रोड पर रैली निकाली गई। हुकूमत से बढ़ती महंगाई और पेट्रोल की कीमतें कंट्रोल करने का मुतालबा किया गया। सिराजुल हक ने कहा, एहतजाज का ये सिलसिला अब रुकने वाला नहीं। जिन्होंने कर्ज लिया उनकी जायदादें और कारोबार बेचकर अदा किया जाए। रात 12 बजे तक हुकूमत ने रिलीफ ना दिया तो कल अगला लाया अमल देंगे। माल रोड पर कारकुनों से अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का खिताब। निगरान वज़ीर आज़म को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहने लगे कि अनवारुल हक बताएं कि ये बिजली के बिल हैं या मौत का परवाना। हम इस दहशत गर्दी को नहीं मानते। बताया जाए आप अवाम के वज़ीर आज़म हैं या IMF मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के। ये बिजली का बिल है या मौत का परवाना है, ये बिजली का बिल है ये या डेथ वारंट है, ये बिजली का बिल है या बदमाशी का टैक्स है, ये बिजली का बिल है या आलमी गुंडागर्दी। सिराजुल हक का कहना था कि पीपल्स पार्टी, नून लीग और PTI ने मुर्दा सांप अनवारुल हक काकड़ के गले में डाल दिया। निगरान वज़ीर आज़म बताएं, उन्हें महंगाई में इजाफे का मैंडेट किसने दिया? जिन्होंने कर्ज लिया उनकी जायदादें और कारोबार बेचकर अदा किया जाए। रात 12 बजे तक हुकूमत ने रिलीफ ना दिया तो कल अगला लाहेअमल दूंगा। आज 12 बजे तक अगर हुकूमत ने कीमतों पर नजरसानी नहीं की और कीमतों में इजाफा वापस नहीं लिया तो कल 12 बजे इंशाअल्लाह ताला मैं मंसूरा में अवाम को अगला लाहेअमल दूंगा। पीछे हटने वाले नहीं है, मंजिल तक जाना है, अवाम को रिलीफ देना है। अमीर जमात इस्लामी का ये भी कहना था कि एहतजाज का ये सिलसिला अब रुकने वाला नहीं। मैं अपनी कौम के लिए अमन और इंसाफ मांगता हूँ और कौम के साथ ही जीने मरने का वादा करता हूँ। कैमरामैन नुमान इजाज के साथ मोहम्मद अली, लाहौर न्यूज़। महंगाई के खिलाफ आवाम के बाद ताजर और सनतकार भी सड़कों पर आ गए। PAF की जानिब से मेन बुलवार्ड पर डॉलर, पेट्रोल, गैस और बिजली की बढ़ती कीमतों के खिलाफ एहतजाज। सनतकारों और ताजर रहनुमाओं की बड़ी तादाद ने एहतजाज में शिरकत की। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल कादिर। डॉलर महंगा, पेट्रोल महंगा, बिजली और गैस भी महंगी। अवाम के साथ बिजनेस कम्युनिटी भी सरापा एहतजाज बन गई। PAF ऑफिस मेन बुलेवार्ड में चेयरमैन PAF फहीमुर रहमान सहगल की जेर सदारत हंगामी इजलास बुलाया गया। इजलास से खिताब में फहीमुर रहमान सहगल ने कहा कि इस महंगाई ने जिंदगी के हर तबके से ताल्लुक रखने वाले को मुतासिर कर दिया है। डॉलर और इंटरेस्ट रेट ने मुल्की कारोबार और सनत की कमर तोड़ दी है। हुकूमत बिजली की कीमतों में इजाफा फौरी वापस ले। इस कौम में अब सख्त नहीं है महंगाई की, हमारे पास वो सोर्स नहीं है। हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन बजाय हम खुसूसी तौर पे हमने ना सिर्फ कॉटेज इंडस्ट्री को इम्प्रूव किया बल्कि जो हमारी लार्ज स्केल इंडस्ट्री थी वो भी अब उन्होंने भी अभी डाउन साइजिंग शुरू कर दी है। 50% कैपेसिटी पे जो फैक्ट्रियाँ चल रही थी वो भी मेरे ख्याल में अब बंद होने के दहाने पे आ चुकी हैं। तो मैं हुकूमत वक्त से मुतालबा करता हूँ कि बिजली के बिलों में इजाफा फौरी तौर पे वापस लिया जाए।
इजलास के बाद सनतकारों व ताजी रहनुमाओं ने महंगाई के खिलाफ मेन बुलेवार्ड पर एहतजाज किया। पैट्रन इन चीफ प्याफ व साबिक सदर लाहौर चैम्बर मियां अंजुम निसार और मियां मोहम्मद अली ने कहा कि हर तबका जिंदगी से ताल्लुक रखने वाला फर्द आज महंगाई पर सरापा एहतजाज है। कारोबार, तिजारत, सनत बुरी तरह मुतासिर हो चुकी है। निगरान वजीर आज़म अवाम की निगरानी करें और टैक्सेस खत्म करें। मैं समझता हूँ ये जुल्म है। हमारी कौम, हमारी मईशत ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। इस हमारी डिमांड है कि बिजली की चोरी को बंद करवाएं, IPPs के साथ निगोशिएट करें और जो है आप जो है और टैक्सेस जो हैं नाजायज़ टैक्सेस बिजली के बिलों में लगे हुए हैं उसको कम करें। पब्लिक में सनत व तजारत में जान नहीं है, बर्दाश्त नहीं है। जब ये पेट्रोल इस्तेमाल नहीं होगा, जब गैस बिजली के बिल देने के काबिल नहीं होंगे तो निगरानी किस बात की करेंगे। एहतजाजी रैली में नायब सदर लाहौर चैम्बर अदनान खालिद भट्ट, साबिक नायब सुदूर मियां अबूजर शाह, ताहिर मंजूर चौधरी समेत ताजिर रहनुमाओं ने बड़ी तादाद में शिरकत की। आपको बताएं, महंगाई में इजाफे का रुझान जारी है। महंगाई की हफ्तावार शरह 0.54% पर पहुंच गई। सालाना महंगाई 27% से तजावुज कर गई। रोजमर्रा रेट लिस्ट में सब्जियां, फल, दालें, ब्रायलर गोश्त भी महंगे हो गए। अब्दुल कादिर की रिपोर्ट देखिए। महंगाई का जिन मुसलसल बेकाबू। वफाकी इदारा शुमारियात ने महंगाई की हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। रवां हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह में 0.54% इजाफा हुआ। सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 27.57% रिकॉर्ड की गई। इदारे शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान 20 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में मजीद इजाफा हुआ। हालिया हफ्ते के दौरान 8 अशिया की कीमतों में कमी और 23 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। चीनी 11 रुपये 40 पैसे, गुड़ 5 रुपये और दाल मसूर 5 रुपये फी किलो तक महंगी हुई। चावल 2 रुपये फी किलो, LPG घरेलू सिलेंडर 11 रुपये, अंडे 2 रुपये दर्जन महंगे हुए। 20 किलो आटे का थैला 3 रुपये, दाल माश 7 रुपये किलो, 5 लीटर कुकिंग ऑयल 17 रुपये तक महंगा हुआ। आलू, ताज़ा दूध, दही और दाल मूंग की कीमत भी मजीद बढ़ी है। दूसरी जानब रेट लिस्ट में 8 सब्जियों के दाम बढ़ा दिए गए। टमाटर 8 रुपये इजाफे से 78 रुपये फी किलो हो गए। दर्जा अव्वल के टमाटर 110 रुपये फी किलो तक फरोख्त हो रहे हैं। सब्ज मिर्च 10 रुपये से बढ़ाकर 110 रुपये किलो, मार्केट में 140 रुपये किलो तक बेची जा रही है। बंद गोभी 15 रुपये, शिमला मिर्च, टींडे देसी और करेले 10, पालक और लीमू 5 रुपये महंगे। ब्रायलर गोश्त 560 रुपये फी किलो हो गया। शहरी कहते हैं आटा, चीनी, सब्जी, घी, फल क्या खरीदें, कुछ भी सस्ता नहीं। 1000 रुपये योमिया कमाकर गुजारा करना मुश्किल हो गया है। खाने पीने की चीज़ों से आदमी जिंदा रहता है। अगर ये चीज़ें हमको मैसर नहीं होंगी तो गरीब आदमी कहाँ से खाएगा। अगर महंगाई के वाले से आप कहें तो ये तो अरूज पे है, और जब किसी चीज़ पे अरूज आता है उस पर जवाल भी आना चाहिए। जवाल आता है लेकिन इस पे कोई जवाल नहीं आ रहा है। ये महंगाई वैसे के वैसे ही है, अवाम पे जवाल ज़रूर आ रहा है। फल का तो नाम ही छोड़ दो ना। दिहाड़ी में क्या करेगा, 1000 रुपये में 1200 में क्या करेगा। आटा लेगा, घी लेगा, चीनी लेगा, पत्ती लेगा, क्या करेगा कि बत्ती का बिल भरेगा। गरीब आदमी तो मर गया। फलों में सेब 300 रुपये, अंगूर 450 रुपये फी किलो, जबकि केले 200 रुपये फी दर्जन तक हो गए हैं। मार्केट में 320 रुपये दर्जन तक बिकने लगे हैं। रुपये और डॉलर का एक तरफा मुकाबला जारी। कारोबारी हफ्ते में डॉलर धुआंधार इनिंग्स खेलता रहा और 332 पर नॉट आउट, जबकि रुपया रुल गया। देखते हैं ये रिपोर्ट। डॉलर के मुकाबले में रुपया संभल न सका। रुपया हर रोज नई कम तरीन हद तक पहुंच रहा है। बैंकों से सार्फिन की डॉलर तलब पूरी न हो सकी। ओपन मार्केट में डॉलर गायब होने लगे। हफ्ता भर में ओपन मार्केट में डॉलर 332 रुपए तक पहुंच गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में 15 रुपए तक का इजाफा हुआ। कारोबारी हफ्ते के आगाज पर ओपन मार्केट डॉलर रेट 317 रुपए तक रहा। हफ्ता भर ओपन मार्केट में डॉलर की तलब बढ़ती रही। इंटरबैंक डॉलर रेट में 4 रुपए 47 पैसे का इजाफा हुआ। कारोबारी हफ्ते में इंटरबैंक डॉलर रेट 305 रुपए 47 पैसे तक पहुंच गया। मार्केट जराये के मुताबिक स्टेट बैंक और दीगर बैंक सार्फिन की डॉलर तलब पूरी नहीं कर पा रहे। ओपन मार्केट में खरीदारी बढ़ने से डॉलर की किल्लत होने लगी। डॉलर की तलब और रसद का फर्क गैर मामूली तेजी का बायस है। ओपन मार्केट में मजीद तेजी के इम्कान पर डॉलर होल्ड भी किया जा रहा है। जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। दी इंजीनियर्स पाकिस्तान के चेयरमैन इंजीनियर जावेद सलीम कुरैशी का कहना है कि पावर सेक्टर के अफसरान और मुलाजमीन को मुफ्त बिजली का तासुर दुरुस्त नहीं, ये उनके कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है। IPPs का फ्रांसिक ऑडिट करवाया जाए और बिजली बिलों के जरिए टैक्सों की वसूली और बिजली चोरी को जंगी बुनियादों पर रोकें। इससे 750 अरब रुपए का बोझ कम होगा। हम हुकूमत को मज़ीद तजावीज़ फराहम करेंगे।
दी इंजीनियर्स पाकिस्तान के चेयरमैन जावेद सलीम कुरैशी की गुलबर्ग में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिजली बिलों के हवाले से मौजूदा सूरत हाल पर काबू पाने के लिए हुकूमत से जल्द इस्लाहात लाने का मुतालबा किया। जावेद सलीम कुरैशी का कहना था कि एनर्जी सेक्टर 2500 अरब रुपए का है, इसमें 500 अरब रुपए टैक्सों का बोझ भी शामिल है। 250 अरब रुपए की चोरी भी बड़ा बोझ है। बतौर इंजीनियर निगरान हुकूमत को मशवरे देते हैं कि इंतजामी मामला दुरुस्त किए जाएं, पावर सेक्टर के तमाम शोबों में काबिल इंजीनियर्स को तैनात किया जाए। बिजली चोरी खत्म करने के लिए हम तजावीज़ देंगे। हमसे निशानदेही करवाएं, हम आपको देते हैं, 24 घंटे में लिस्टें देते हैं। स्टेट खुद पकड़े, स्टेट खुद उन पे पर्चा दर्ज करे। और ये जो इस वक्त हुकूमत है, मैं इनको ये मुअद्दबाना गुजारिश करना चाहता हूँ, प्लीज़ ये फैसला कर छोड़ें। फिर आपको समझ आएगा कि ये जो 500 अरब है, 500 अरब के अंदर कम से कम आप 250 अरब ऐसा शामिल करें। 250 अरब, तो इसका मतलब ये है कि 2500 अरब में से 750 अरब आवाम का बोझ उतर जाएगा। जावेद सलीम कुरैशी का मजीद कहना था कि हुकूमत हमारी मुशावरत से रिफॉर्म्स करे तो 6 माह में 750 अरब रुपए का बोझ कम हो सकता है और अवाम निगरान हुकूमत को कंधों पर उठा लेंगे। हमारा मसला ही तकनीकी और इंतजामी है, वसाइल की कोई कमी नहीं। महंगे IPP से जान छुड़ाई जाए और उनका ऑडिट भी कराया जाए। मीटर्स की परचेज प्राइवेट सेक्टर से कराई जाए। डिस्कोज फौरी अपना किबला दुरुस्त करें। मैं 100% चोरी ख़त्म नहीं कर रहा, मैं 40% चोरी ख़त्म करने की बात कर रहा हूँ। 40% चोरी की सिर्फ, तो आपको 250 अरब उससे बचता है। अब 250 अरब आपने बचा लिया है। अवाम को ज़रा 2500 अरब में से 750 अरब का रिलीफ दें। अवाम इनके लिए खुशहाली और आज़ादी के नारे लगाएंगे इन्हीं सड़कों पे। इंजीनियर जावेद सलीम कुरैशी का कहना था कि इंजीनियर्स का टैक्स इकट्ठा करना बिजली की तकसीमकार कंपनी का काम नहीं, जिसका काम है उसी अदारे को दिया जाए तो मामलात बेहतर होंगे। कैमरामैन फ़खर अब्बास के साथ फ़हद अमीन, लाहौर न्यूज़। बागों का शहर डाकुओं के निशाने पर पुलिस नाके भी डाके रोकने में नाकाम। शहर में 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ जराइम की 518 वारदातें रिपोर्ट। मित्रिशा में 38 साला खातून को जहर देकर कत्ल कर दिया गया। पुलिस किसी वारदात का सुराग न लगा सकी। मुजाहिद लतीफ़ की रिपोर्ट देखिए। सूबाई दारुल हुकूमत की पुलिस VVIPs की सिक्योरिटी में मसरूफ डाकुओं ने वारदातों की 5 सेंचुरियां मुकम्मल कर ली। शहरी करोड़ों रुपए और कीमती अशिया से महरूम कर दिए गए। मिस्री शाह में 38 साला खातून को जहर देकर कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने लाश मुर्दा खाने मुंतकिल करके कार्रवाई का आगाज कर दिया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से 85 मोटरसाइकिल चोरी हुए। टाउनशिप में डाकू शहरी से मोटरसाइकिल छीन कर फरार हो गए। डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग से शहरी जख्मी हो गया। उधर फैक्ट्री एरिया में चोर घर के ताले तोड़कर 3,89,000 रुपए और तलाई जेवरात ले गए। चूंग में चोर घर के ताले तोड़कर 12,75,000 रुपए के तलाई जेवरात और कीमती अशिया ले उड़े। मुस्तफा टाउन में डाकुओं ने शहरी को 30,000 रुपए और मोबाइल फोन से महरूम कर दिया। कैंट के इलाके सरवर रोड पर डाकू शहरी के घर से 50,000 रुपए लूट कर फरार हो गए। नसीराबाद में निजी लेबोरेटरी से 45,000 और मोबाइल लूट कर ले गए। इस्लामपुरा में गोश्त की दुकान से 10,000 लूट लिए गए। शहर में कारें छीनने की वारदातों में भी इजाफा हो गया। इकबाल टाउन से हाफिज आसिम, सतू कतला से मुश्ताक और मनामा से तनवीर अहमद की कारें चोरी हो गयी। शहर में चोरी और डकैती की बढ़ती वारदातें पुलिस कारकर्दगी पर सवालिया निशान हैं। करोड़ों रुपए के फंड्स भी शहरियों को तहफ्फुज फराहम नहीं कर सके। शहरियों ने सरबराह लाहौर पुलिस से तहफ्फुज फराहम करने का मुतालबा किया है। लाहौर समेत पंजाब भर में डेंगू केसेस और लार्वा में इजाफा जारी है। लाहौर में 24 घंटों के दौरान 37 नए मरीज रिपोर्ट हुए। सूबे भर में 84 मरीज सामने आए। डेंगू मच्छर ने पंजे गाड़ लिए। पंजाब भर में 84 नए मरीजों में डेंगू की तस्दीक। रवां साल अब तक डेंगू के 1351 कंफर्म मरीज रिपोर्ट हुए। लाहौर में 24 घंटों के दौरान मजीद 37 मरीज सामने आए। शहर में कंफर्म मरीजों की तादाद 506 हो गई। सेक्रेटरी सेहत पंजाब अली जान के मुताबिक पंजाब भर के अस्पतालों में इस वक्त डेंगू के 88 मरीज जेर इलाज हैं। लाहौर के अस्पतालों में 49 मरीज दाखिल हैं। कमिश्नर लाहौर के मुताबिक लाहौर में 1043 मकामात से लार्वा मिला और 8,026 मकामात पर डेंगू स्प्रे किया गया। 24 घंटों में 41,054 इंडोर चेकिंग के दौरान 1,003 मकामात से लार्वा मिला। 8,213 आउटडोर डेंगू सर्विलेंस के नतीजे में 40 मकामात से लार्वा बरामद हुआ। मोहम्मद अली रंधावा का कहना था कि इंसदादे डेंगू टीमें फील्ड में मौजूद हैं। शहरियों की मदद के बगैर इंसदादे डेंगू मुहिम 100% मुकम्मल नहीं हो सकती। वस्ती पंजाब के इलाकों से गुमशुदा बुत तहजीब के 2000 साल कदीम आसार और नवादरात की दरियाफ्त। अमूमी तौर पर यह तासुर पाया जाता है कि बुत सल्तनत KPK और पंजाब में टेक्सला तक महदूद थी।
लेकिन अब इस हवाले से एक नई तहकीक सामने आई है। सरगोदा और झंग के दरमियानी इलाकों से बड़ी तादाद में गुमशुदा बुद्ध तहजीब के आसार दरियाफ्त किए गए हैं। इन आसार की दरियाफ्त से इस अमर की भी निशानदेही हुई कि बुद्ध दौर के बासियों ने इन इलाकों में भी बड़ी तादाद में अपने स्टूपास और अपनी आबादियां तामीर की थीं और अपने मजहब की तशहीर के लिए मुतअद्दिद मुनफरिद अंदाज भी मुतारिफ कराए। आप टेक्सला से डाउनवर्ड आ जाएं तो जो जेहलम का सारा एरिया है और जो साल्ट रेंज का एरिया है और सोन वैली है, इसकी अगर जोग्राफ़ी देखी जाए तो ये वैसी है जैसे हमें टेक्सला में या KPK में मिलती है। तो मेरा जो यकीन है वो ये है कि इन इलाकों में भी स्टूपाज मौजूद हैं और मोनेस्ट्रीज मौजूद हैं। वस्ती पंजाब से तारीख का धारा तब्दील कर देने वाले बुद्ध तहजीब के सामने आने वाले नवादरात में बुद्ध इबादत गाहों की बाकी